अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब खैरियत से हैं। आज का ट्यूटोरियल है एक वलीमा ब्राइडल ट्यूटोरियल एंड सुपर कलर की फाउंडेशन यूज़ की है. This tutorial will be in English and in Urdu. So I've started off with the eyebrows. I've used a brow wax. I've used the Got To Be brow wax this time. So this one is really like strong hold. So if you want to use this you can. Otherwise there are other ones. I tend to use the Be Perfect gel a lot more. So यहाँ पे मैंने brow gel यूज़ किया, Got To Be के brow gel यूज़ किया जो बहुत ज़्यादा सख्त जैसे कर देती है बालों को. लेकिन अगर आपके बाल थोड़े से हैं जिनको थोड़ा सा टेम ज़्यादा करना है तो फिर ये अच्छी है. नहीं तो आप भी परफेक्ट की ट्राई कर ले या कोई भी जो आपकी पसंद की ब्राउ जेल है. बालों को मैंने थोड़ा सा ब्रश अप कर दिया एंड देन आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा सा एक एंगल ब्रश को लेके एंड पहले मैं यहाँ पे कलर लगाती हूँ. आप देख लें कि एंड्स पे लगाती हूँ. जो आउटर कॉर्नर्स है वहाँ पे मैं फोकस करती हूँ, ब्राउ जेल यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे एंड देन इनर कॉर्नर्स पे कम प्रोडक्ट लगाती हूँ. So I start off with the outer corners of the eyebrows and I go in with my brow gel or a brow colour which is a powder, and I always start from the middle of the eyebrows and go to the outer corners of my eyebrow, get the tailbone shape in, and then when there's less product left I will start on the inner brows as well. This way you avoid having too much product on the inner corner, on the outer corners, because it looks really harsh if there's too much product there. And then once I add my brow gel, my powders, I can like blend it out a little bit more as well. पी लुइस का रूमर बेस यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे शेड 2 में एंड यहाँ पे आप कंसीलर भी यूज़ कर ले अपनी पसंद का, दैट्स फाइन एज वेल. फ्लैट ब्रश के साथ मैं यूज़ कर रही हूँ, कार्व आउट कर रही हूँ एंड देन एक्स्ट्रा जो प्रोडक्ट है उसको भी ब्रश अवे कर दूँगी. यूजिंग माई पी लुइस बेस रूमर here in the shade 2. You can use a concealer as well if you wish. I carve out the eyebrows using a flat synthetic brush. And then I pat on the product, carve out the upper edge of the eyebrows as well, and then I will blend the extra product away. So आपने केयरफुली यहाँ पे ब्लेंडिंग करनी है, यहाँ पे अपना प्रोडक्ट आपने कार्व आउट करना है एंड देन जो इसका एक्स्ट्रा प्रोडक्ट होगा एक फ्लफ़ी ब्रश या एक ब्यूटी ब्लेंडर लेके आप उसको पैट अवे कर दें, क्योंकि यहाँ पे जैसे अभी प्रोडक्ट अगर आप आई शेडो लगाएंगे तो आपका ख़राब हो जाएगा. सो एक्स्ट्रा पाउडर आपने एक्स्ट्रा जो प्रोडक्ट है उसको डेफिनेटली हटा देना. सो आई ब्लेंड अवे all the harsh edges and any extra products I've got. If you leave this product like it is you won't be able to blend your eyeshadows properly, so just make sure you take away the extra product. So I'm blending away the harsh edges and I tap away any extra products that's on the eyelids as well. Now I don't powder, but if you want to powder you can use a small amount of translucent powder here as well before you apply your eyeshadows. Now मैं यहाँ पे wet base पे काम करूँगी, लेकिन अगर आप चाहते हैं, अगर आपको थोड़ा सा ये मुश्किल लगता है तो आप यहाँ पे थोड़ा सा ट्रांसलूसेंट पाउडर जो है वो ऐड कर लें. अब मैं आउटर कॉर्नर से शुरू कर रही हूँ. ये टू फेस का एक पैलेट है जिसमें पिंकी टोन्ड एंड गोल्ड न्यूड्स प्रोडक्ट्स थे यहाँ पे. सो आउटर कॉर्नर्स पे मैंने टैपिंग मोशन से लगाया. अभी सिर्फ मैंने प्रोडक्ट लगाना है, ब्लेंड नहीं कर रही. जब मुझे फील होगा कि प्रोडक्ट अभी चिपक गया, अभी ज़्यादा वेट नहीं फील हो रहा, मेरा ब्रश जो है आसानी से हिल रहा है, देन इसकी मैं थोड़ी सी ब्लेंडिंग शुरू कर दूँगी. If you're using your product wet here, I've gone in with a Too Faced eyeshadow palette. It's the pinky tone one with nudes and golds in it. I tap on my product first until I feel that the product is gone on and my brush isn't struggling to kind of like swirl around too much, because obviously the concealer base is wet here. So I'm tapping it on just to get the pigment on, and then when I can feel my brush is moving easily, that's when I will start using swirling motions and start blending out this product. So initially I tap on just to make sure I get my pigment on there, and then once I feel the brush is moving easily then I start blending. But like I said, you can use translucent powder first as well. So once I've blended everything away I will move on to another colour. So I've actually blended away and now I'm going to use a slightly lighter colour of the same shade that I've already used and blend out the harsh edges. So यहाँ पे ब्लेंडिंग करने के लिए अभी पहला कलर मैंने लगा दिया. अभी इसके आउटर कॉर्नर्स को थोड़ा सा ब्लेंड करने के लिए इसी टोन में थोड़ा सा लाइटर शेड मैंने लिया है एंड सिर्फ ये जो एजेस है इसको मैं ब्लेंड किए जा रही हूँ और किसी जगह पे नहीं कर रही. So now I'm taking a slightly darker chocolate brown, and in the outer corners, in the corner areas, this is where I'm going to add it. So I'm going to keep this below the crease for now and blend this out in pretty much the same area, but you're blending this out outwards.
तो यहाँ पे अभी मैंने एक चॉकलेट ब्राउन सा कलर लिया है एंड देन आउटर जो कॉर्नर जो आउटर वी है वहाँ पे टैप करके पहले मैं कलर लगा दूंगी एंड देन इसको आहिस्ता सा ब्लेंड कर दूंगी जहाँ जहाँ मुझे चाहिए, लेकिन नॉर्मली ये आउटर वी पे ही रहेगा। एक छोटा फ्लफ़ी ब्रश यूज़ कर रही हूँ अभी कि इसकी जो मैं ब्लेंडिंग है इसको थोड़ा सा कंट्रोल कर लूँ। So you're going to use a smaller fluffy brush here now so you can control your blending so you're not going too high. Take your time when you're doing this because you can end up using a bit too much product. So first I'm tapping it on and then I will take any extra product off on the back of my hand and then start blending. So once you've blended, I've just gone in with a fluffy brush and I've gone in with my very first colour just to overlap the two colours just to make sure there's no harshness. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहला कलर जो है एक बड़े फ्लफ़ी ब्रश से मैंने ले लिया है एंड फिर सेंटर ऑफ द आइज पे लगा रही हूँ एंड इसको आउटर की तरफ थोड़ा सा लेके जा रही हूँ कि वो जो अभी डार्क कलर मैंने लगाया है वो उसमें सारा ब्लेंडिंग आ जाए, थोड़ा सा मर्ज हो जाए एंड वो सेपरेशन ना नज़र आए। तो इसका आपने बहुत ध्यान रखना है। So फिर मैंने glitter लगाया है। The glitter I'm using is from Shop Violet Voss, which is an American company and I've had these for quite a while, so you don't have to use these, just any glitters of your choice, but I did go for a pinky toned one. Initially I went in with the Makeup by Mario Sparkles, which I absolutely love, but I wanted a bit more, so I then added up my glitter as well. तो पहले मैंने थोड़ा सा शिमर लगाया था, ये मेकअप बाय मारियो का शिमर है, मैंने लगाया हुआ था एंड पहले मैंने सोच रही थी कि सिर्फ शिमर करूँगी लेकिन फिर मेरा दिल कर रहा था कि मैं ग्लिटर भी लगा दूँ। तो पहले मैंने ये शिमर लगाया। अगर आपको शिमर इफेक्ट पसंद है तो आप सिर्फ ये भी लगा सकते हैं। इट लुक्स रियली रियली प्रिटी। कैमरे पे शायद ना इतना नज़र आए लेकिन रियलिटी में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है ये। सो दिस मैंने पहले लगा लिया था लेकिन फिर मैंने डिसाइड किया नहीं, मुझे ज़्यादा हैवी मतलब ग्लिटर लुक चाहिए था, तो फिर मैंने ग्लिटर लगा दिया था। ग्लिटर मैंने लिया था शॉप वायलेट वॉस से, जो एक अमेरिकन कंपनी है। सो आप अपनी पसंद का ग्लिटर यूज़ करें जो भी आपको पसंद है। यहाँ पे मैंने NYX की ग्लिटर ग्रुप ले लगाई है एंड देन एक फ्लफ़ी ब्रश से अपना ग्लिटर उठा लूँगी। तो मैंने 2 कलर यूज़ किए थे, एक थोड़ा सा पर्पली था एंड एक थोड़ा सा पिंक था। दोनों को मैंने मिक्स किया था कि थोड़ा सा जो उसकी जो रिफ्लेक्शन आती है ना तो उसमें थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। सो आप देख लें कि मैं पहले एक फ्लफ़ी ब्रश को यूज़ करूँगी, टैपिंग मोशन से इसको ग्लिटर को लगा लूँगी एंड देन वापस दोबारा जाके और लगा लूँगी अगर ज़रूरत हो। पहले अपना ब्रश एकदम से ना भर लें। I've added on my NYX glue here and I'm using a fluffy brush. I used 2 glitters. One was slightly more pinkier toned purpley and one was slightly lighter pink. So I mixed them both and added them in and it just gives you a really nice reflex. I'm using a small fluffy brush and I'm tapping on my glitter and I'm not using a lot of glitter straight away. I kind of like build it up, so I'll add a bit more glue as you can see and then I'll go back in with a bit more glitter. If you go in with too much glitter straight away, you will start getting fallout later on. सो आप देख लें मैं छोटे छोटे स्टेप्स में मैं ये कर रही हूँ, आहिस्ता आहिस्ता अपना ग्लिटर ऐड करूँ, एकदम मैं नहीं करी। अगर आप एकदम ग्लिटर लगा देंगे तो आपकी फॉल आउट बहुत ज़्यादा बाद में हो जाएगी। अब इम्पोर्टेंट है कि जो आउटर कॉर्नर्स है वो आप ग्लिटर के साथ थोड़ा सा मर्ज कर दें, नहीं तो आपको वो सेपरेशन जो ग्लिटर की होती है ना वो बहुत बुरी लगती है। सो नाउ आई एम जस्ट टेकिंग द आउटर कॉर्नर दैट आई यूज्ड एंड द कलर एंड आई एम ब्लेंडिंग दैट इन विद द glitter a little bit. I think the worst thing you can see is just some glitter stuck on and then the separation between that and the outer corner eye makeup. So just make sure you really can like look at these little details and blend these in. On the outer corner now I'm just using a black eyeshadow and I'm just running this along the eyeline and I'm just blending this out a little bit, so I'm just giving it a slight smokiness. तो यहाँ पे मैंने ब्लैक आई शेडो ले एक वेरी छोटा सा थिन सा ब्रश यूज़ किया एज आई लाइनर, इसको यूज़ करूँगी। सो इधर आप देख सकते हैं कि बिल्कुल आईलिड पे मैं लैश लाइन के पास लगा रही हूँ एंड इसको थोड़ा सा डेप्थ दे रही हूँ। सो यहाँ पे इसको स्मोक आउट कर रही हूँ कि इसकी आउटर कॉर्नर्स को ना थोड़ा सा वो डेप्थ आ जाए आई लैशेस लगाने से पहले। So now I've just popped on my eyelashes. It depends what eyelashes you want here. I just try a few on and then whichever I like I will glue them and give them about a minute in between and stick these on. I will start showing you the whole process soon as well. So eyelashes लगा दिए, यहाँ पे मैंने विटामिन सी की आई क्रीम लगाई है, फिर मैंने विटामिन सीरम भी लगाया था, विटामिन सी का सीरम एंड देन मैंने अपना मॉइस्चराइज़र लगाया था एंड देन
मैंने थोड़ी सी सन क्रीम लगाई थी. So I went in with eye cream, my vitamin C serum, and then I used a moisturizer, and then I went in with some sun cream as well, which gives a really nice glow on your face as well when you're doing makeup. But when you're layering the makeup, make sure you give each product time to sink in, and if you're scared on using too many products, you can omit the sun cream definitely, and maybe your moisturizer if you think, sorry, not your moisturizer, your vitamin C if you want to. सो ये जो सारे प्रोडक्ट्स हैं इनकी लेयरिंग मैंने की थी. इन सब प्रोडक्ट्स को मैंने बीच में टाइम दिया था अब्जॉर्ब होने के लिए. अगर आपको डर लगता है इतने स्किन केयर प्रोडक्ट्स यूज़ करने के लिए तो आप सन क्रीम ना यूज़ करें, एंड विटामिन सी अगर आप दिल करता है तो उसको भी छोड़ सकते हैं. आई क्रीम आई थिंक इज़ इम्पोर्टेंट एंड सो इज़ दी मॉइस्चराइज़र. फिर मैंने ये ब्लरिंग प्राइमर यूज़ किया है एल्फ का, जिसको मैं काफ़ी ज़्यादा भर के यूज़ करती हूँ, लेकिन मैं काफ़ी सर्कुलर मोशंस में इसको मिक्स करती रहती हूँ पहले फिंगर से एंड देन ब्रश के साथ जब तक ये अब्जॉर्ब हो जाता है. So I've used the e.l.f. blurring primer here, and you saw I used quite a bit. I used my finger in swirling motions first and then a brush to really kind of like work this into the skin. And now I'm color correcting with my Makeup Forever Essentials palette. So this is a foundation, it's like an orangey brownie toned, and I'm just color correcting under the eyes and around the mouth. कलर करेक्टिंग मैं फाउंडेशन से कर रही हूँ. मेकअप फॉरएवर का पैलेट है. इसको मैंने इसमें एक ये ऑरेंजी ब्राउन सा टोन का शेड है, एंड ये मैं माउथ एरिया के अराउंड जहाँ पे मुझे डार्कनेस लगती है एंड आइज़ के नीचे इसको लगा लूँगी एंड इसको थोड़ी सी ब्लेंड कर दूँगी फाउंडेशन से पहले. आज मैंने सुपर कलर की फाउंडेशन यूज़ किया. मेरी जो मॉडल है ये काफ़ी फेयर थी एंड इसको मैंने आइवरी शेड का पहले यूज़ किया एंड देन मैंने थोड़ा सा NB कलर भी यूज़ किया था. इसको मैंने थोड़ा सा मैक फिक्स से थोड़ा सा स्प्रे कर लिया था एंड देन ब्यूटी ब्लेंडर से इसको मैंने यूज़ किया था. ये एक्चुअली पहली दफ़ा था कि मैंने सुपर कलर फाउंडेशन यूज़ किया एंड और कोई फाउंडेशन ऐड नहीं की थी. इसकी कवरेज इतनी ज़्यादा अच्छी है, मतलब मैक्सिमम कवरेज आपको मिलता है. इसको बिल्डअप आप कर सकते हैं एज वेल, एंड इसको इट वाज रियली लॉन्ग लास्टिंग एज वेल एंड बहुत फ्लॉलेस फिनिश आई थी. सो आप देख सकते हैं कि मैं ब्रश के साथ अप्लाई करूँगी एंड देन ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ करूँगी. सो आई यूज़ अ सुपर कलर फ्रॉम Kryolan, which is a really really nice foundation. This was actually the first time I used it. I wasn't quite sure what it would be like, but I ended up spraying a little bit of MAC Fix Plus, used a brush to get it onto the face, and then I tapped away with a damp beauty blender. Now I used the shade Ivory, which was really fair, but my model was really fair, which isn't actually coming across in the video as much, but she was really really fair. But I used this and then I added a slightly darker shade later on just to blend it out, just to give a bit of warmth. But you will see that I add the warmth back into the face with my concealers and my contouring. सो इसको आपने काफ़ी देर के लिए ब्लेंड करना है, अच्छे तरीके से ब्लेंड करना है. जब आपको प्रोडक्ट वेट लगेगा चेहरे पे ना, तो आप ब्लेंड करते रहे. इसको काफ़ी फ्यू मिनट्स के लिए मैंने ब्लेंड किया था. डैम्प ब्यूटी ब्लेंडर, वेट नहीं है इसमें. पानी आपने सारा निचोड़ देना है एंड टिश्यू से उसको, नहीं तो और ज़्यादा निचोड़ लें एज वेल कि आपका थोड़ा सा ड्राई हो जाए, लेकिन डैम्प होता है. सो आपने इसकी ब्लेंडिंग बहुत अच्छी तरीके से करनी है. प्रोडक्ट वहाँ पर ऐसे बस बैठा हुआ नहीं होना चाहिए. आपने इसको तब तक करना है जब तक आपको लगे कि काफ़ी ज़्यादा स्किन के साथ जैसे मतलब मिक्स हो गई है. सो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मेरा शेड है. इसकी कवरेज बहुत ज़्यादा अच्छी थी, कोई और फाउंडेशन मैंने नहीं लगाई यहाँ पे, एंड इसकी कवरेज बहुत ज़्यादा नाइस थी. अब कंसीलर्स कॉन्टोरिंग वगैरह करूँगी और ज़्यादा हो जाएगी. टू फेस का वनीला कंसीलर यूज़ करूँगी एंड इनर कॉर्नर्स पे इस वीडियो में मैंने यूज़ किया था एक वाइट बेस जो पी लुइस का है. आप ज़रूरी नहीं आप वाइट बेस यूज़ करें, आप लाइट सा कंसीलर भी यूज़ कर सकते हैं टू फेस का ही. एंड ये तरीका कई दफ़ा मैं करती हूँ कि अगर इनर कॉर्नर्स में मुझे काफ़ी ज़्यादा ब्राइटनेस चाहिए. So to brighten the eyes, I'm using the vanilla concealer from Too Faced, and then on the inner corners I've used the P. Louise white base, but you don't have to use the white base, you could use a concealer, so you could use a lighter shade in the same concealer you're using as well. This is just to brighten up, so when I blend it'll give a slight brightness to the inner corners instead of just being white underneath the whole eye. Contouring with my Makeup Forever foundation palette. Again, I love using this. I've actually run out now. I do need to order this again, but I do love this, and I'm bringing warmth back into the skin now. And I don't do harsh contouring.
सो यहाँ पे मैंने मेकअप फॉरएवर का जो एसेंशियल्स पैलेट है अगेन उसी से मैं अपनी कॉन्टोरिंग करूँगी। आप आहिस्ता आहिस्ता देखेंगे कि इसके चेहरे में वो जो वार्मथ है, वो जो कलर है वो वापस आ रहा है। जहाँ जहाँ पे मुझे लाइट चाहिए वहाँ पे लाइट रह जाएगा, जहाँ पे मुझे थोड़ा सा वार्म चाहिए वार्म हो जाएगा। सो बहुत वाइट बेस नहीं लगेगा। अगर आपको वाइट बेस पसंद है, अगर आपकी क्लाइंट को पसंद है तो फिर आप इसको कम कर सकते हैं, लेकिन मैं काफ़ी ज़्यादा इसको ब्लेंड कर रही हूँ। सो आप हर जगह पे देखेंगे कि मैं कोई हार्श लाइंस नहीं करती। मुझे अच्छा लगता है कि थोड़ी सी ब्लेंडिंग सही हो। कैमरे से मैं एक दफ़ा देख के चेक कर लेती हूँ, अगर कैमरे पे हार्श लाइंस लग रही है तो फिर मैं उसको और ब्लेंड कर दूँगी। So you can see I'm just adding in all the warmth back into the colour, and then once I do the concealer again I will then blend it all out. So nothing is blended out in one step, so it will never look perfect after this step and then the next step. It is a work in progress. So I'm doing a little bit of contouring on the nose as well. Same product, I've just switched to a smaller brush and I'm going down the sides of the nose and taking the product down. सो सेम प्रोडक्ट से नोज़ कॉन्टोरिंग करूँगी। एक छोटा ब्रश ले लिया अभी कि थोड़ा सा कंट्रोल हो जाए। सो साइडों से आप देख सकते हैं कि मैंने थोड़ा सा प्रोडक्ट लिया है एंड साइड ऑफ द नोज़ के नीचे साइड्स पे मैं जाती हूँ। मैं अभी आगे से स्पेसिफिक वीडियोस लेके आऊँगी जहाँ पे मैं आपको वॉइस ओवर नहीं एक्चुअली वहाँ पे करके दिखाऊँगी, तो होपफुली मैं ज़्यादा एक्सप्लेन कर सकती हूँ। लेकिन ऑब्वियसली थोड़ी सी ये वीडियोज़ निकालूँ एंड देन बाद में मेरा नया कॉन्टेंट भी शुरू हो जाएगा जहाँ पर मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में जाके एक्सप्लेन करूँगी हर चीज़। I'm using a brush। यहाँ पे ब्रश से मैंने सारा कुछ ये जो कंसीलर था इसको टैपिंग मोशन से स्वीप नहीं करी, उसी जगह पे टैप करके आंखों के अंदर से लेके आउटर कॉर्नर्स तक जा रही हूँ, लेकिन उसी जगह पे रख रही हूँ प्रोडक्ट। आप देख लें कि मैं छोटा छोटा टैप्स कर रही हूँ। So I'm tapping away at the concealer with a brush. I love using a brush. I used to use a beauty blender a lot, but I much prefer using a brush. And you're going to tap away. So I've started from the inner corners, taking it outward, so there's not too much white, but they both merge into each other and they kind of like start becoming one. The inner corners I've just tapped away a little bit more, very small amount now of the white base again, just with a beauty blender because it'll just blend away a bit for me. And I'm using a small beauty blender here. सो ये स्टेप ज़रूरी नहीं है, लेकिन थोड़ा सा मैंने वाइट जो बेस यूज़ किया था फिर इनर कॉर्नर्स पे ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से यूज़ कर लिया। ये छोटा मैंने ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ किया, डैम्प है अगेन, एंड इसको इनर कॉर्नर्स पे मैं थोड़ा सा लगा रही हूँ कि थोड़ी सी ब्राइटनेस आ जाए। हालांकि ये स्टेप यू डोंट हैव टू डू दिस, ओके। ये स्टेप मैंने यहाँ पे ऐड किया था, लेकिन अगर आपका दिल करता है आप कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने सेटिंग करनी है, सो मैंने अपना डैम्प ब्यूटी ब्लेंडर अपना हड ब्यूटी की पाउडर के अंदर लगाया, थोड़ा सा पाउडर लिया है एंड उसी जगह पे मैं टैप करके इसको जब तक ये अब्जॉर्ब नहीं हो जाता मैं टैप करती रहूँगी। ये मैं सेट कर रही हूँ मेकअप को अभी, एंड देन बेकिंग करूँगी। So to set the makeup, I'm using my small damp beauty blender again, dipped it into my Huda Beauty powder, just a small amount, and then I'm just tapping away, as you can see, until it all it absorbs into the skin. So I'm just going to continue doing this to set my makeup before I do the baking. I never bake straight away. I've gone through this so many times. I find your makeup is cakey if you go in with just baking, but there are so many different ways to do this, and I'm going to start showing you lots of different ways of doing this as well. So now I've gone in with a powder puff, and I'm same powder, Huda Beauty, but I've gone in and I'm putting this on in obviously an extra amount now everywhere I want to bake, and this is going to catch my fallout as well and set the makeup for me. अब मैंने हडा ब्यूटी का ही पाउडर लिया, लेकिन पाउडर पफ से लिया। अगर मैं ऐसे पहले करती तो इसकी जो बेकिंग है बहुत ही केकी लगेगी, अभी केकी नहीं लगेगी क्योंकि पहले मैंने जो वेट पाउडर है उसको थोड़ा सा सेट कर लिया एंड देन यहाँ पे मैंने अपना पाउडर लगाया। नाउ ये बैठा रहेगा ये पाउडर, फिर मैं अंडर आइज भी करूँगी एंड यहाँ पे जो पाउडर कॉन्टोरिंग मैंने करनी है अब पाउडर कॉन्टोर कर दूँगी कि जो मैंने कॉन्टोरिंग पहले किए हुए है उसको जो शेप है ना उसका जो एम्फेसिस है वो ज़्यादा आ जाएगा। मैक का मैंने स्टूडियो फिक्स ब्रॉन्जर यूज़ करी हूँ यहाँ पे। I'm using the MAC bronzer here and I'm using this to contour. So I've done my cream contour. Now I'm setting everything with my powder. So I didn't use much powder when you noticed when I was setting the face on the areas where the contour was. That's being set with my powder contour now. So this is where you avoid having too many powders in the same place. So now I'm going to work on the under the eyes, and I'm just using the same browns just to smoke out the eyes. Now just to set your powder, I'm using the Charlotte Tilbury Photo Finish powder and I'm popping that on a brush, and then I'm just using the brush to tap away the product. I will tap it all into the skin and then sweep once I've done that. I'm not
sweeping straight away. So यहाँ पे मैंने Charlotte Tilbury का फ्लॉलेस पाउडर लिया है, इसको ब्रश पे थोड़ा सा लिया एंड देन जो एक्स्ट्रा पाउडर था उसको मैं टैप करके उसको अब्जॉर्ब कर रही हूँ. टैप करके स्वीप नहीं, पहले मैंने टैप किया है सारा, फिर जो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट था थोड़ा सा उसको स्वीप कर दिया, पहले मैंने प्रेस इन किया है सारे पाउडर को. सो इन चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस आ जाती है आपकी फिनिश में. सो आप इन टेक्निक्स पे थोड़ा सा ध्यान दें एंड देन आप देखेंगे कि आपका प्रोडक्ट ना और ज़्यादा अच्छा फ्लॉलेस लग रहा है स्किन पे. थोड़ी सी पाउडर मैंने कंटूरिंग कर दिया एज वेल. यहाँ पे हमने इतनी ज़्यादा पाउडरिंग किया तो थोड़ा सा यहाँ पे मैंने मैक का फिक्स प्लस यूज़ किया एंड देन बाकी की हाईलाइटिंग करूँगी. So because I've powdered so much, I've done all my powdering, it's all out the way now. The face obviously can look a little bit dry at this point, so I do hydrate it. You can hydrate it with whatever you like, but I have used the MAC Fix Plus here. Then a little bit of highlighter. I used the Pat McGrath highlighter, but I didn't quite like the way it all went on, so I did go in with my Doll Beauty highlighter after that to blend it out really nicely. तो यहाँ पे मैंने ये पैट मैकग्राथ का हाइलाइटर यूज़ किया, सिर्फ इस जगह पे किया था एंड देन मैंने इसके ऊपर अपना यूज़ किया था डॉल ब्यूटी का हाइलाइटर, उसको सही तरह ब्लेंड करने के लिए. एंड आई ऑलवेज गो इन विद माई हाइलाइटर फर्स्ट एंड देन माई ब्लशर बिकॉज इट मेक्स श्योर दैट यू डोंट हैव दैट सेपरेशन इन द प्रोडक्ट, सो यू वांट इट और नाइसली ब्लेंडेड. सो मैं हाइलाइटर पहले करती हूँ एंड देन ब्लशर करती हूँ. ब्लशर मैंने एक्चुअली जो इस दफ़ा यूज़ किया है वो मेरी फ्रेंड का था एंड मुझे नहीं पता था कितना पिगमेंटेड है. जब मैंने लगाया तो इतना ज़्यादा लग गया था, सो इसको काफ़ी मुझे टाइम लगा था ब्लेंड करते हुए. मैंने सोचा था थोड़ा लग जाएगा लेकिन काफ़ी ज़्यादा लग गया था. सो इसको मैंने ब्लेंड किया एंड देन ब्यूटी ब्लेंडर के साथ भी ब्लेंड करती रही थी काफ़ी देर के लिए कि इसकी ब्लेंडिंग आ जाए. सो आई वेंट इन विद द Hourglass blusher, and this was actually my friend's palette and it was the first time I used it. I didn't quite realize how pigmented it was, so I did go in with a bit too much, but I did end up just keep blending it away. At the end I blended a bit more as well to make sure that, you know, there was no harshness. I went in with a nude lipstick. I think these were from MAC as well, and I just wanted a very nudie pink lipstick here. Nothing too harsh. The eyes were doing the talking and the base was doing the talking for this look for me. सो मैक के मैंने ये लिप लाइनर यूज़ किया था, मेबेलिन की लिपस्टिक थी एंड लिपस्टिक मुझे काफ़ी न्यूड सी चाहिए थी एंड आई लव दिस कॉम्बिनेशन. इट लुक्स रियली नाइस. दिस दफ़ा मेरा था कि बेस अच्छा हो एंड आईज ज़्यादा लाइक एम्फोसिस हो, लिप्स को मैं न्यूड रखना चाह रही थी. एंड आहिस्ता आहिस्ता आपने पहले अपना लिप लाइनर लगा लेना एंड देन अपनी जो लिपस्टिक है ब्रश की मदद से आप लगा लें. आई होप आपको ये ट्यूटोरियल्स पसंद आ रहे हैं. आगे मैं और स्पेसिफिक ट्यूटोरियल्स लेके आऊँगी. प्लीज़ कमेंट करना, लाइक करना, शेयर करना. मेरी वीडियोस को ऐसे ज़्यादा अच्छा वो थोड़े से व्यूज़ भी आते हैं अगर ऐसा हो. सो फिनिशिंग टचेज़ यहाँ पे हमेशा, क्योंकि इतना पाउडरिंग किया, सारा कुछ किया, हमेशा मैं आईलाइनर को थोड़ा सा टॉप अप कर लेती हूँ, लिपस्टिक को देखती हूँ, हाइलाइटर को चेक कर लेती हूँ, अपना ग्लिटर जो है उसको देखती हूँ कि अगर थोड़ा सा वहाँ पे चाहिए. इस टाइप की चीज़ें आपने बहुत ज़्यादा करनी है चेक्स एंड पे. Last minute checks, I always go through the mascara. I end up going over the eyeliner a little bit. Make sure you check these things because you've powdered so much, and sometimes you'll lose the sharpness of these things. So always go over things like your eyeliner, your glitter. I tend to top up my glitter again at the end if I need to, or your highlighter and things like that. And I always blend around the eyes and make sure everything is connected at this point because sometimes, you know, you can see a little bit of harshness. I hope you're enjoying these videos as well. I will be bringing loads of more specific videos for you soon as well. This is one of my old tutorials, so you may have seen this before, but I have explained it in a lot of detail as well. So I hope you are enjoying. Please do leave a comment for me because it does help with the video and the algorithm, especially since I was hacked and I'm not getting many views. And I will be starting with my new content very soon as well. So ये हमारा फाइनल लुक था. फिर हमने इसका obviously ड्रेसिंग की थी and everything. ये जो highlighter है, by the way, this highlighter is from Inglot. It's a sparkling dust and I always add just a very small amount sometimes. I don't know the shade name because it's come off the box, but all the highlighters are really nice, but they're very pigmented, by the way. So I hope आपको ये पसंद आए. Please like, share, comment कर देना. इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी. अल्लाह हाफ़िज़.